Today's subject is a beautiful subject, and I think leadership and vision, these two subjects, they form the core of my understanding of business, and I love these two subjects. तो उसमें से आज का subject जो है the power of vision. I'll share a few insights about this subject, whatever I know, whatever I have been through, whatever I've understood, my interactions, my discussions with many entrepreneurs, जो मैंने पढ़ा है इस सब्जेक्ट के बारे में, जो समझा है. Let me share in the next 15-20 minutes with all of you the crux of that subject. I was writing a note this very morning on social media on this very subject of vision, and वो एक क्वेश्चन मेरे से ना बार बार पूछा जाता है कि what do you think is the biggest blessing we human beings have? और अक्सर किसी न किसी वर्कशॉप में ये क्वेश्चन आता है सामने, सर एज व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास इतनी सारी वर्च्यूज हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा वर्च्यू क्या है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? सो अनडाउटेडली this answer pops out, and the answer is that our ability to visualize a better future for ourselves. This is the answer which comes out every time. ये हमारी काबिलियत कि हम इंसान के रूप में हम हैं, तो हमारी काबिलियत है कि हम अपने फ्यूचर को लेके हम एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, हम विजनिंग कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर और अच्छा कैसे हो सकता है. आई थिंक नो अदर क्रिएशन ऑन द प्लैनेट हैज दिस एबिलिटी, हैज बीन ब्लेस्ड विद दिस वर्च्यू एक्सेप्ट अस. और अगर जो ब्लेसिंग हमारे पास है, जो किसी और के पास नहीं है, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर अलाउइंग इट टू गो टू आवर ग्रेव्स विद अस, आई थिंक इट्स अ शेम. इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती कि जो आपके पास दिया गया है, जो किसी और के पास नहीं है, और आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हो. इट इज जस्ट लाइक यू गॉट अ कार एंड यू गॉट द ओनली कार इन द वर्ल्ड, एंड वो कार को आपने गैरेज में रखा हुआ है. सो दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ आई सी द पावर ऑफ विजनिंग. सो ये एक जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज व्हाट वी हैव the ability of ours to visualize our future, the ability of ours to envision our future. And मैं अपनी एक लाइफ में अगर देखूं, I just want you to understand this, that two things which I have noticed in my life, okay, all my failures are a result of my envisioning. जितने भी बार मैं फेल हुआ हूं, वो मैं फेल इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने विजुलाइज किया, कहीं ना कहीं मैंने एनविजन किया कि मुझे ये करना है. और सारी चीज जो मैंने विजुलाइज करी, सारी चीज जो मैंने एनविजन करी, मैंने अपने ड्रीम्स में रखा, सारी चीज सही नहीं हुई है, सारी चीज मेरे लिए हकीकत में नहीं बनी है. एंड आई एम हैप्पी एंड थैंक गॉड दैट ऑल दैट व्हिच आई एनविजन्ड डिड नॉट बिकम अ रियलिटी. बिकॉज बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आप डिजर्व नहीं करते, बट आप उसको एनविजन करते हो. बट there have been things which I have achieved, and there have been areas where I have failed. So, but वो fail इसलिए हुआ where because I had visualized that, I had thought about it कि मुझे करना है, और मैं वो कर नहीं पाया, मैं नाकामयाब हो गया. So, had I not envisioned it, I would not have tried it. Had I not tried it, I would not have failed. And had I not failed, I would have not grown. That's a simple understanding of things. तो बहुत लोग जो है वो ट्राई नहीं करते क्योंकि वो उसके बारे में सोचते नहीं, एनविजन नहीं करते. और जब ट्राई नहीं करते तो फेल नहीं होते तो कुछ नया नहीं सीखते, नया एक्सपीरियंस ऐड नहीं होता. So I've got a list of failures with me, whether it be long back, the failures of starting centers across, that was a failure. Whether it be starting a beautiful app which I thought was beautiful and it bombed, it was a huge investment based app which I launched and it just flopped. Whether it be the green initiative we thought of having across the country, of planting so many trees, that went for a toss. Whether it be the buddy coach initiative, जो हमने सोचा था कि we will have people outgrowing their past and the limitation through buddy coach initiative, that went for a toss. So एक लंबी list है of my failures, but I realized that those failures, they were some were very expensive, some were not so expensive, but all the failures were rich in learnings, rich in experience for me. And in the same way, whatever I have achieved in my life, I think a major contribution, उसका एक अगर मैं श्रेय देता हूँ, a major श्रेय मैं उसको देता हूँ to the ability of mine to envision it. तो मैंने envision किया कि मुझे कैसा अपने आप को physically रखना है. मैंने उसके बारे में मेरे सपने हैं, जो मेरी एक चाहत है, जो मेरी एक काबिलियत है कि मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए. और उसके थ्रू I've been able to run marathons, I've been able to cycle across countries, whether it be in Europe, I've been able to cycle across India,
I've been able to cycle up on the highest motorable road in the country. तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो उसको विजन किया था. Whether it be creating on the social side, creating a 60 crore liter water holding capacity lake in Marathwada region, वो भी क्योंकि हमने सोचा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए. Whether it be driving the car in the toughest mountain ranges of the world in Leh and Ladakh, that was because of the vision. तो अगर मैं ऐसे गिनते जाऊं तो मेरी कामयाबी भी because of my ability to vision हुई है. So reaching out to entrepreneurs, अभी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने बनाया है called 10x. It's an ecosystem for entrepreneurs. वो भी बिकॉज हमने कहीं ना कहीं उसको विजुअलाइज किया और हमने एनविजन किया. तो मेरे कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि विजन इज सच अ वर्च्यू कि इस वर्च्यू से हम बहुत कुछ पाने के लायक बन जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस वर्च्यू. हाँ, हर चीज जो हम लोग एनविजन करते हैं, हर चीज जो हम लोग सपने में सोचते हैं, हर चीज नहीं हो पाती है. वी डू नेवर गेट अ 10 out of 10. लेकिन जब सोचते हैं तो शायद 10 में से 2 हो जाते हैं, 10 में से 3 हो जाते हैं, 10 में से 5 हो जाते हैं. एंड आई थिंक दैट्स गुड इनफ. कुछ तो हो रहा है, क्योंकि जो एनविजन नहीं करते उनके लाइफ में शायद बहुत कम होता है या कुछ नहीं भी होता है. सो दैट्स वेयर दिस सब्जेक्ट होल्ड्स अ प्लेस इन माय हार्ट. I was reading about Ratan Tata, and this wonderful story came out that way back in 1980s when he was under Mr. J.R.D. Tata, तो उन्होंने एक टाटा प्लान को ऑथर किया कि हाउ द टाटा कंपनी और टाटा सन्स, टाटा ऑर्गेनाइजेशन वुड बी, एंड दैट he authored as a Tata plan. And when he was the head of Tata, when he became the head, then the group asked him to start implementing that. तो उन्होंने एक विजन रखा कि टाटा ग्रुप कैसा होगा आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों में. वो टाटा ग्रुप कैसा होगा. नाउ वी टॉकिंग अबाउट समथिंग वे बैक इन 1990. तो आज हम 30 साल बाद जो है उस प्लान के हम उसके बेनिफिट्स देख रहे हैं कि हाउ टाटा ग्रुप हैज इवॉल्व्ड, कि कैसे एक इंडियन कंपनी बिकेम अ ग्लोबल कंपनी. इट डिडंट हैपन जस्ट लाइक दिस. किसी ने तो उसको एनविजन किया होगा ना. हाउ जगुआर वाज एक्वायर्ड, हाउ कोरस वाज एक्वायर्ड, किसी ने तो उसको एनविजन किया होगा. किसी ने तो उसका सपना देखा होगा. किसी ने तो उसके बारे में सोचा होगा. इट डिडंट हैपन जस्ट लाइक दिस. रतन टाटा बोलते हैं कि ऑन द स्ट्रीट्स आई वुड सी मेनी टाइम्स कि एक स्कूटर में जो है एक फैमिली है, तो एक फादर ही इज राइडिंग द स्कूटर, द वाइफ इज सिटिंग बिहाइंड, एंड उसका जूनियर जो है छोटा बच्चा वो आगे द हैंडल ही स्टैंडिंग. And he says, whenever I would see that sight, which was common in the early 90s, early 80s, he said, I would always worry about the physical security of that family. On the streets of Mumbai and other cities in the country, जहाँ ये two-wheeler में 3 लोग चल रहे हैं, and they cannot afford a bigger car, they cannot afford a different mode of transport. तो ये स्कूटर में अपने जान को कितना जोखिम में डाल रहे हैं. कह रहे हैं उस थॉट से he envisioned नैनो. तो ताकत देखिए कि एनविजन की ताकत क्या है. And I think all great companies they have somewhere they have become great because somewhere the leaders were visionary leaders. So whether it be today where Tata is, whether it be on all segments, उनका एक vision statement ही है that whichever segment we are in, we should be known in that segment. And of course the kind of work they've been doing, the kind of code of conduct they have been having in their organizations. Because 1990 when Ratan Tata took over, he came out with the Tata code of conduct for all the companies which Tata was a part of. And he said जिस company में Tata का नाम ऐड है, they have to fall in line with the Tata code of conduct. ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम टाटा का है और code of conduct उनका चलेगा ना. And he gave them an option कि आप एग्जिट कर सकते हो पार्टनरशिप विद टाटा, विद ड्यू रिस्पेक्ट whatever it is there, we will settle it. But if you are there having the brand name of Tata, one is that Tata brand will be there, which will be formidable, which will be visual, which will be seen, right? And you will follow the code of conduct which has been set by us. And this happened because of some challenge which he had, which the company faced. But ये सोचना, एक कंपनी का प्लान बनाना और उस प्लान के हिसाब से आगे कंपनी को ले जाना is the reason why the companies become enduring and great companies.
another example, if you were to see, you have a phone in your hand, and it's a smartphone, right? And smartphone का अगर हम बात करें तो I think the greatest credit of the smartphone goes to Apple. Do you think ऐसा हुआ होगा कि एक दिन जो है एप्पल का और इनकॉर्पोरेशन का एक टीम मेंबर आया होगा स्टीव के पास, कि स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूं मैं, कि स्टीव जॉब्स के पास वो आया और वो बोलता है, हे स्टीव, आई गॉट दिस गैजेट मेड व्हिच इज अ फोन, एंड यू डिसाइड कि इसको हम बेच सकते नहीं बेच सकते हैं, या यू वांट टू कॉल इट एन आईफोन. डू यू थिंक ऐसा हुआ होगा कि वन टीम मेंबर केम वन डे एंड ही सेड आई गॉट अ गैजेट मेड? ऐसा नहीं हुआ होगा ना. स्टीव मस्ट हैव एनविजन्ड दैट long back, and that's what he said when he had a BlueBerry. He said, I want to get rid of all the buttons. I don't want to see a button here. And then later he says, can I just remove the buttons and just rearrange them and design them in such a way where they don't look like buttons. So किसने क्या envision किया और क्या product निकाला, and the entire organization went into supporting that vision. So I'm a strong believer, I'm a strong supporter of this concept of vision. And as the more I deal with entrepreneurs, the more I'm convinced कि जिसने विजन के ऊपर अपनी एक पकड़ मजबूत कर ली है, उसने अपने फ्यूचर को मजबूत करने का एक रास्ता देख लिया है. So yes, organizations have moved phenomenally. They've become phenomenally bigger, and they've been organizations जो इतनी बड़ी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी वहां नहीं रही जहां वो थी. That's what the vision does. So if you're an entrepreneur and you're listening to me, तो मेरा आपसे ये कहना होगा कि इस कॉन्सेप्ट को जो है ना आप लाइटली मत लो. एंड जो विजन नहीं सेट करते, those who don't set the plans and agenda for the future, they are bound to, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, those who don't set the plans for the future, they are bound to be slaves of the present. Now I'm not saying that you will be free of the present तो है जहां पर काम करना है, but as an organization, are you enslaved by the present, or are you engulfed by the opportunities of the future? ये हमको सोचना है. और फ्यूचर में तो बहुत मौके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम वर्तमान में इतने खोए हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि हमें भविष्य की सुध लेने की हमें फुर्सत नहीं हो रही. So whether you're professionals, you're homemakers, you're entrepreneurs, I would say that give some time to understanding vision, give some time to setting your vision, and of course then the third step is you have to put yourself into making that vision become a reality, and that's where the present comes, and you keep on working. लेकिन दिशा तो सेट करो. My favorite example is what I keep on telling entrepreneurs is कि have you ever sat in a train? You go to the railway station and आप गए, स्टेशन में गए और आपने अपना बैग लिया और जो ट्रेन आपको दिखी सामने आप उसमें बैठ गए. ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ है. Even for a journey of 1 hour, you have gone to the station, you have looked out on the platform, and you have asked for which train is going where. You know where you have to go, and even you know this train is going there. Before you board the train में चढ़ने से पहले आप पूछते हो टीटी से, चल आप पूछते हो को ट्रैवलर से या किसी पैसेंजर से, ये ट्रेन वहां जा रही है कि नहीं जा रही है. You want to be sure, you want to be doubly sure, you want to confirm it कि ये ट्रेन वहां जा रही है कि नहीं जा रही है. चाहे वो 1 घंटे का सफर हो, चाहे वो 12 घंटे का सफर हो, you want to be sure about where the train is going. Am I right? लेकिन जब आपकी जिंदगी की ट्रेन है, जो आपकी बिजनेस की ट्रेन है, which you board every day, which you're boarding for hours at a stretch, कभी आपने पूछा अपने आप से, कभी आपने ये सवाल किया कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है? And I think that's where we miss out, कि हम लोग ये सवाल पूछते नहीं, हम बस ट्रेन में बैठ जाते हैं. तो 1-2 घंटे की जर्नी हम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जिंदगी भर की जर्नी हम बिना पूछे बैठ जाते हैं, and you were just working and slogging. और आप में से कुछ लोग तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप लोग तो उस ट्रेन के इंजन के ड्राइवर हैं. और इमेजिन करो कि इंजन के ट्रेन के ड्राइवर को नहीं मालूम ट्रेन कहां जानी है, और वो रोज सुबह आकर ट्रेन चलाता है, बट ही हैज नो विजन ऑफ वेयर टू टेक द ट्रेन. तो क्या हाल होगा उस ट्रेन का? एनर्जी तो यूज होगी, पावर तो कंज्यूम करेगा, टाइम तो कंज्यूम करेगा, लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं. क्या होगा उस ट्रेन में बैठी सवारियों का? कहां पहुंचेंगी वो सवारियां? कहां पहुंचेंगे वो पैसेंजर्स? Nobody knows. और सोने पे सुहागा कब होता है कि उस ट्रेन में अगर ऐसे पैसेंजर बैठे हुए हैं जिनको भी पड़ी नहीं है कि कहां जाना है,
तो दिस इज कॉल्ड सोने पे सुहागा, कि ड्राइवर को भी नहीं पड़ी है कि कहाँ जाना है, पैसेंजर बैठे हैं उनको भी नहीं पड़ी कहाँ जाना है। ये क्या बना के रखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन में। और अक्सर ऐसे में एक पैसेंजर उठ के आ जाता है और पूछता है ड्राइवर को, भाई ट्रेन कहाँ ले जा रहे हो? एंड द ड्राइवर फील्स ऑफेंडेड, मेरे से पूछता है कि ट्रेन कहाँ जा रही है। And that's what happens to organizations where entrepreneurs don't have clarity about the future. One smart team member comes and the smart team member asks the entrepreneur, hey boss, what is the plan for the next 3 years? What's the vision for the next 3, 4, 5 years? And the entrepreneur feels threatened. He feels kind of, pushed to a corner. And he starts thinking, ये smart बच्चा, ये कौन है? ये ज़्यादा शैनपन दिखाता है. He's trying to act smart. And that's how that वो उसका relationship उससे अच्छा नहीं होता है, and either the person leaves or he is thrown out of the company. So if you are running a business, if you are heading an organization, if you're heading a department, if you're leading in any position, your first and foremost job is to ensure that you have formulated a great inspiring vision. बहुत जरूरी है. And there are how do you form it? That's a different subject. How do we formulate a vision? I'm just sharing with you the power of vision. And trust me, from experience of whatever I've been able to achieve, whether it be giving to the city of Pune 2 world records, whether it be making people do things which they had not imagined of doing. I'm not talking about just me accomplishing. God gave me the opportunity and position that I could persuade many people to do things which they had never thought of doing. आज कितने घर ऐसे हैं, 200 घर ऐसे हैं पुणे में, and people around Pune जिनके घर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड सर्टिफिकेट है. So it was not for me which I got a certificate. The certificate is there in the houses of 200 plus people, and they still see it with pride that they have a Guinness Book of World Record. The people who got a world record, a Limca Book of World Record in skydiving. The people who proudly brag about their journey of motorcycling from across the country. Because कहीं ना कहीं वो विजन हुआ और वो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई. In mission and vision. See, mission is a part of vision. Vision is a much bigger understanding of the future. So vision is a much bigger understanding where mission becomes a part of it. The way you will achieve your vision will become a part of it. Your entire value system will become a part of the vision. So mission is a part of the vision. तो मिशन का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपको इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल समय बताऊं आपको मैं कि मिशन क्या है. मिशन का मतलब आपने कहा कि यू हैव दैट मिशनरी फीलिंग. तो पहले 1980s 90s में उसकी पिक्चर आती थी, सिल्वेस्टर स्टैलोन की पिक्चर आती थी, रॉकी 1, रॉकी 2, एंड देन रैम्बो. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द मूवीज कॉल्ड रैम्बो. तो उसमें मिशनरी लोग बोले जाते थे. तो द वन मिशनरी मतलब आपने सर पे कफन बांधा और आप एक लक्ष्य के पीछे चल दिए. And you are behind that goal of yours like a missionary. तो वो क्या कंपेलिंग गोल है, क्या ऐसा गोल है जिसके लिए आप सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं. That's kind of a mission, right? Vision is a much broader and a much bigger aspect where वो जो मिशन है it becomes a part of the vision. तो विजन है कि हाँ ये गोल तो पूरा करना है, ये कंपेलिंग गोल है, इसको तो पूरा करना है, लेकिन कैसे करना है? हम कुछ चीजें करेंगे और कुछ चीजें में हम ध्यान देंगे कि हम ये नहीं करेंगे. हाँ, हमने कंपनी बनानी है 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, दैट्स अ मिशन. ये कंपेलिंग गोल है. हमने ये एक और ब्रांच सेटअप करना है नासिक, या हमने एक और सेंटर चालू करना है, एक और फैक्ट्री शेड डालनी है लेट्स से इन नागपुर. तो ये हमारा एक मिशन है. यार ये तो होना है 1 साल के अंदर, वी शुड बी एबल टू सेट अप दैट फैक्ट्री इन नागपुर. ये हमारा मिशन हो गया. लेकिन ये 50 करोड़ करते करते ये फैक्ट्री को 1 साल के अंदर हमने करना है. इसको करने के लिए हम कुछ डूज एंड डोंट्स को भी फॉलो करेंगे. सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी करके पैसा कमाएंगे ये नहीं है. दिस इज नॉट विजन. लेट मी टेल यू, पैसा कमाने के लिए विजन लगता ही नहीं है. You don't need a vision to make money. You can make money anyways. The vision is a much bigger and broader subject. तो पराग आओ मेरे साथ workshop में, and I would be able to take you deeper in those 2 days about what is a vision and what's a mission all about. But in the shortest possible time which I have with me right now, so mission is a compelling goal where it is just like a missionary की feeling से आप पूरे जज्बातों के साथ अपनी जान को लगा देते हो उस गोल को पूरा करने में. That's what is called a mission. And vision is a much broader concept. And उसके अंदर आप गोल्स भी होते हैं, आपके do's and don'ts भी होते हैं,
आपका वाइज भी होता है, दैट व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो उन सब चीजों से विजन बनता है। व्हेन इट कम्स टू, देखो बुक नॉलेज जो होती है, इट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट। आई फील कि हमें कहीं तो एक थ्रेड चाहिए ना, कहीं तो एक सिरा चाहिए पकड़ने का। सो बुक नॉलेज कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड यू वर्किंग ऑन दैट बुक नॉलेज विल गिव यू मोर एंड मोर क्लैरिटी अबाउट इट। बट आई बिलीव दैट बहुत बार क्या होता है कि उस बुक नॉलेज की क्लैरिटी को करते 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 शायद समय निकल जाता है और हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जब समय निकलता है और गलतियां होती तो हमारा विश्वास उस कॉन्सेप्ट से निकल जाता है। book is a starting point, or any knowledge is a starting point. Book is just a analogy, but any knowledge, कहीं भी हम कुछ बात सुनते हैं, कहीं पढ़ते हैं, it's a starting point, and we say हाँ यार ये तो अच्छा है। तो जब हम उस starting point से आगे बढ़ते हैं तो हमें we enter into unknown areas, we enter into uncharted territories। तो वहां क्या है हमें नहीं मालूम, और वहां की जो रुकावटें हैं, वहां के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हमारे सामने आते हैं। और जब वो रुकावटें और ऑब्स्टिकल सामने आती हैं, सो आइदर वी आर एबल टू ओवरकम देम, व्हिच इज वेरी रेयर, बिकॉज वो हमें मालूम नहीं थी, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो रुकावट आ गई। तो वी नॉर्मली एंड अप फेलिंग इन दैट, एंड सेकंड वी एंड अप कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम। जब हम टाइम भी कंज्यूम करते हैं और फेल भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज पे से हमें विश्वास उठ जाता है, यार ये सुनने में अच्छा है, यार ये ठीक है, सब कुछ ऑल सेड एंड डन, बट हकीकत तो ये है कि ये नहीं हो सकता। दैट्स द कंक्लूजन वी कम टू। एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसी सिचुएशन है, यू नीड टू फास्ट फॉरवर्ड योर लर्निंग बाय द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल source of clarity and knowledge, somebody who's walked on that path, somebody who has seen those uncharted territories, somebody who has clarity about what will come, what will lay ahead of you, and वो clarity के साथ वो इंसान आपको हैंड होल्ड करता है और आपको ले जाता है। and I think that's where the mentor or a coach comes into picture। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। it is not just by knowledge which you have to go through। yes, if you are having lot of energy, तो फिर आप उस चीज को बहुत आगे तक और आप डाई हार्ड हो, फॉलोअर हो उस कॉन्सेप्ट के, उस थॉट के, आपके अंदर the ability to not give up is filled in deep, तो फिर आप अकेले अपनी जर्नी पे चल सकते हो। बट अगर टाइम की कीमत है, टाइम बचाना है, लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना है, देन एन एक्सटर्नल हेल्प इज देयर। और मुझे लगता है ना कि लाइफ में ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सी व्हेन I have got my trainer, I have got my physical consultant who's there, who helps me, guides me। तो मैं जो बन रहा हूं या जो मैं हूं, तो लोग ये नहीं पूछते कि कौन है जिसने सिखाया, वो कहते हैं आप ऐसे हो। And that's what happens in organizations. People don't talk about who took you there. People say, "Arey, you have reached 100 crores." People say that, "Oh, you have been able to come out with this great product," and that's what matters. तो जो हम बन सकते हैं, जो हम हमारे थ्रू बन सकता है, हम अक्सर उसको मिस कर जाते हैं because we miss out on the intervention of somebody else। तो अपना तो हमने वॉक करना ही है, लेकिन किसी की गाइडेंस से अगर हमने सीख लिया तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो 2+2 हम स्कूल में अगर कोई सिखाता नहीं, गिरते पड़ते हम सीख ही लेते हैं, लेकिन शायद उसमें टाइम बहुत लगता है, उसमें एनर्जी बहुत लगता है। ABCD हमें कोई सिखाता नहीं ना, तो हम कैसे भी करके सीख ही लेते, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। राइट? चलना अगर हमें कोई सिखाता नहीं तो हम चल लेते ना, शायद उसमें 1-2 साल और लग जाते। दैट्स अ डिफरेंस। Innovation is an outcome of vision. How can you innovate something without having a vision? तो this is a good question। तो इनोवेशन जो लोग करते हैं, इसका मतलब वो विजनरी है ना। इनोवेट का मतलब क्या है? यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो you're envisioning it। यार ये नहीं चलेगा, कुछ तो और होना चाहिए। Something has to come out, and that something has to come out should be a part, should be in your mind। And I want you to understand, everything in this world has been created twice, once here and second time outside। And that's the blessing which we all have। ये हम सबकी blessing है कि हम कोई और जानवर, किसी और के पास ये काबिलियत नहीं है कि वो विजुअलाइज करके फिर वो जिंदगी जी सकता है। Do you think a German Shepherd would say, "Yaar, I just thought that I will be a great German Shepherd, and now I live my life like this"? नहीं कर सकता ना वो। उसके पास वो फैकल्टी नहीं है विजुअलाइज करने की, इमेजिन करने की, विजनिंग करने की। But we have, and that's I think from there the innovations come out। Indian companies में I was talking with
Sandeep Vaslekar ji, one of the greatest thinkers, whom I've come across in my life, and he's a great thought leader. And he says, Manish, ki aap apne entrepreneurs ko batao, since he knows I am dealing with so many entrepreneurs, he says, please tell them to set up an R&D division in the company. We are Indian entrepreneurs don't have the mindset of research and development. They don't visual, and uska sabse bada karan I shared with them कि sir सबसे बड़ा कारण है they don't set the vision. उनको कुछ नया लाने का विजन ही नहीं है, तो जो ऑर्डर मिलता है उसको बनाने में लग जाते हैं. तो वी काइंड ऑफ हैव नॉट इवॉल्व्ड. ये तो लास्ट 3-4 साल के अंदर then somewhere we have now got into the whole act of making it in India, and now the visioning is happening, but still lot of small and medium scale entrepreneurs, उनके पास R&D का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जब R&D का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब R&D का विजन नहीं है. विजन नहीं है तो इनोवेशन नहीं होगा. इनोवेशन नहीं होगा तो फिर मार्केट में पकड़ कैसे होगी? आप किसी न किसी को फॉलो ही करते रहोगे, आप कभी लीड नहीं कर पाओगे. सी अगेन आई एम सेइंग, हल्का से समझो कि विजन इज एन अम्ब्रेला. छाता है, छाता के जो आपके स्पोक्स है ना, जो उसके पार्ट्स हैं. So one of the part is the mission, one of the part is the purpose, one of the part is the do's and don'ts, one of the parts are the goals, the other part is the strategy. ऐसा करके पूरा छाता को हम vision बोलते हैं. तो you have to have clarity at all costs in terms of the clarity on the vision side. बहुत जरूरी है कि vision जो है ना, ये इसके benefits क्या है. And ये अगले 5-10 मिनट आपके you will have the most awesome clarity of your life. Listen to me for the next few minutes. Vision का जो हम बोलते हैं ना benefit क्या है, कि it forms the basis of extraordinary human behavior. जब आप ये vision set करते हो तो कहीं ना कहीं you are saying that I want a better future for myself. Am I right or not? In any aspect, it can be health, it can be business, it can be finance, it can be living life, whatever it is. तो आप कह रहे हो कि you will not envision a bad future for yourself. You will envision a better future for yourself. That's what vision is all about. कि मेरी जिंदगी आज से ज्यादा अच्छी हो फ्यूचर में, तो वो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने माइंड में. तो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ विजन इज कि इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बिहेवियर. आई विल गिव एन एग्जांपल. Some years back, some of you know that we went for this Guinness Book of World Record for the longest human chain underwater. मेरा विश्वास करो कि ऐसा लगा लोगों को, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत से लोगों को लगता है यार अच्छा ठीक है ना, अंडर वाटर ह्यूमन चेन बनाई, कौन सी बड़ी बात है. बट जो लोग वहां गए, हम 220 लोग यहां से गए, तो वो 220 लोगों को इकट्ठा करना was itself on its own a humongous task. It took extraordinary human efforts for us to get all those 220 people aligned to form a human chain underwater and make them stay underwater for almost 45 to 50 minutes. And उसमें से वो जो 220 लोग गए थे, उसमें से एक भी सर्टिफाइड, एक ही सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर था. We had non-swimmers there, we had children there, we had families there, we had homemakers there. ऐसे लोग थे जिनको स्विमिंग नहीं आती थी. तो उन सबके अंदर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बिहेवियर निकला, just because एक विजन लेके चल रहे थे that we are going to make a Guinness Book of World Record and we want to give this record to our city, we are going to give this record to our country. The record is being held by some country in Europe. वो रिकॉर्ड वहां से उठा के हमने इंडिया में लाना है. That was the vision. और उस विजन के चक्कर में इतने लोगों ने अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड काम किया. उस विजन के चक्कर में कितने लोगों ने अपने डर, अपने फियर के ऊपर काबू पाया. इट फॉर्म द बेसिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बिहेवियर. दूसरा बेनिफिट विजन का, तो आप देखो कि आपकी कंपनी में जो टीम है आपकी, क्या वो काबिल है? हाँ काबिल है. क्या सक्षम है? सक्षम है. बट समवेयर कहीं ना कहीं उसके अंदर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर नहीं निकल रहा है. क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज भी नहीं कर रहे हैं. शायद कुछ जबरदस्त हम लोग हमारे पास है नहीं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं. सो ऑर्डिनरी विजन, ऑर्डिनरी बिहेवियर. जितना जैसा टारगेट वैसा है उसका टारगेट पीछा करने का हमारा बिहेवियर एंड हमारा पूरा एक्शंस. सो हैविंग अ कंपेलिंग विजन which is going to be very exciting, which is going to be very compelling, that will form the basis where people will bring out something which they had never brought out before. Second benefit of vision is कि it forms the context
इस विजन की वजह से इट बिकम्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिकल प्लानिंग, कि आपकी टैक्टिक्स क्या होने चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने चाहिए। तो ये विजन से तो आएगा। विजन नहीं है और स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ये तो येड़े वाली बात हो गई है कि आपका विजन नहीं है लेकिन आप स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी मेड टिल यू हैव अ विजन, टैक्टिक्स कैन नॉट बी मेड टिल यू हैव अ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी मेड टिल यू हैव अ विजन। स्ट्रैटेजी किस चीज के लिए? भाई आपने कहा मेरा विजन है कि आई वांट टू लूज 10 kgs ऑफ माय वेट, ये आपने विजन बनाया, तभी तो स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई ठीक है, आई विल रिड्यूस माय स्वीट्स और आई विल नॉट हैव स्वीट्स और आई विल गो टू द जिम और आई विल गो ऑन अ सर्टेन डाइट। ये तभी तो होगा बिकॉज यू हैव अ विजन। तो आपकी कंपनी का विजन विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रैटेजीज, फॉर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाई-अप्स, एसोसिएशंस, mergers, or maybe extraordinary kind of associations with people who you have not met before. Some extraordinary learnings will happen, some process will be brought in, some wonderful guys will be brought in the team. तो ये एक स्ट्रैटेजी का बड़ा पावरफुल हिस्सा है। तो आज आप देखो कि आपके यहाँ कुछ स्ट्रैटेजिकली कुछ नया नहीं हो रहा है, इट्स बिकॉज समवेयर द विजन इज नॉट वेरी कंपेलिंग। थर्ड बेनिफिट ऑफ अ विजन इज विजन जितना बढ़िया होता है, जितना कंपेलिंग होता है, जब हम उसको शेयर करते हैं और हम टीम को बोलते हैं यार ये हमने चेस करना है, दिस इज व्हाट वी आर रनिंग एंड गनिंग आफ्टर, यू विल सी दैट टीम बॉन्ड्स टुगेदर, टीम में कोहेसिवनेस आता है, टीम में एक बॉन्डिंग आता है। तो जब हम लोग स्कूबा डाइविंग पे गए तो आप देखो कि वहां से आने के बाद इतने अच्छे रिश्ते बने लोगों के, बिकॉज वी डिड समथिंग फिनोमिनल। और उस मुश्किल के सिचुएशन में लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया तो बॉन्ड बना तो लोगों का आपस का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हो गया। एंड सो मेनी इयर्स हैव पास्ड बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड, बट स्टिल लोगों का रिश्ता इतना अच्छा बना हुआ है, लोगों का आपस का एक बॉन्डिंग अच्छा बना हुआ है। तो अगर आपकी कंपनी में कहीं बॉन्ड की कमी है, कहीं आपस में टीम बिल्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब एक कॉमन विजन जो बहुत जबरदस्त है उसके पीछे भागने के लिए हमने सबको साथ नहीं लगाया। जब हम किसी बड़ी चीज के पीछा कर रहे होते हैं, किसी एक्साइटिंग चीज का पीछा कर रहे होते हैं, तो हम अपने खुद के भेदभाव, हम अपने खुद के मन मुटाव, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, राइट। एंड देन द सेकंड पॉइंट व्हिच आई शेयर्ड विद यू कि विजन से स्ट्रैटेजी निकलता है। तो स्ट्रैटेजी का कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो व्हेन वी वर डूइंग स्कूबा डाइविंग, गोइंग बैक टू द सेकंड पॉइंट कि वी वर डूइंग स्कूबा डाइविंग, तो हमने फर्स्ट डे वी फेल्ड इन आवर अटेम्प्ट एंड द ऑर्गेनाइजर सेड आपकी बस की बात नहीं है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, आप लोग आए कहां से हो? उसने देखा ये नॉन स्विमर्स हैं, उसने कहा इनका एक भी कोई सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर नहीं है, उसने कहा बच्चे आए हुए हैं, नॉन सीरियस प्लेयर्स आए हुए हैं। तो उसको वो जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा ये साहब ये आपकी बस की बात नहीं, यू गो होम। And then we changed the strategy and we had discussions, we got our tactics out, and that vision became the basis on which we had to strategize. And the third point I told you, the third benefit is people come together. जब मुश्किलात एक में आते हैं, जब एक बड़े कंपेलिंग विजन को पीछा करते हैं हम लोग, तो हम आपस के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने आपस के मतभेद को हम लोग भुला देते हैं, क्योंकि अभी वो उस विजन के पार जाना है, राइट। एंड द फोर्थ इज मच मोर पावरफुल पॉइंट कि जब एक बड़ा विजन होता है ना तो बहुत लोग लगते हैं, जब बहुत लोग लगते हैं तो एक इंसान के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। You're able to outgrow the dependency of one person. जब एक छोटे विजन में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम चल रहे होते हैं, तो शायद जाने अनजाने में एक इंसान के ऊपर पूरी कंपनी टिकी होती है, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो एक सीनियर लीडर हो। और वो फिर जब उस इंसान को मालूम पड़ता है कि यार सब कुछ मुझ पर निर्भर है, तो या तो वो ओवरबर्डन्ड हो जाता है या फिर अकड़ो हो जाता है कि अच्छा सब तो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो आइदर वेज इट इज नॉट नाइस कि ओवरबर्डन्ड है, दुनिया के बोझ का मारा है, वो भी अच्छा नहीं है, या फिर उसकी कमर ऐसी हो जाए, उसका सीना ऐसा चढ़ा हो जाए, अच्छा सब मुझ पर निर्भर है, ये एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है। सो जब एक बड़ा कंपेलिंग विजन होता है, सो यू हैव योर टीम व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ इट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीडर्स इमर्ज। One of the most beautiful benefits of vision is you create leaders in the process of achieving your vision, in the process of chasing your vision. So dependency on one person is reduced. तो हम स्कूबा डाइविंग में जब गए तो हमारी खुद की एक कोर ग्रुप थी। उस कोर ग्रुप में कुछ स्टार्टिंग के लीडर्स थे जो टाइम नहीं दे पाए इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ व्हाटएवर दे हैड देयर ओन पर्सनल कमिटमेंट्स देयर, एंड बट देयर वर अदर लीडर्स हु टुक चार्ज।
तो वो इवेंट सक्सेसफुल हो गया, विजन कामयाब हो गया, एंड दोज पीपल इमर्ज्ड एज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी पावरफुल लीडर्स. So there's so much more to speak about on leadership, so much more to share with you what leadership is. There's so much more on the vision side also, कि what visioning is all about. But मेरा आपसे ये कहना होगा to wind up the live telecast today कि आप entrepreneur हैं तो आप इस power of vision को समझो. और ये नहीं है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब्जेक्ट उनके लिए है कि मिशन क्या है, विजन क्या है, ये पर्पस क्या है, ये उनके लिए ऐसा नहीं है. इनफैक्ट वो सब छोटी थी ना एक समय में, एंड जब छोटी थी तब उन्होंने ये क्लैरिटी रखी, एंड दैट्स व्हाई दे बिकेम बिग. क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूं लोगों से कि सर इज इट फॉर अस और आर दीज थिंग्स ओनली फॉर बिग कंपनीज? अरे इट इज फॉर स्मॉल कंपनीज टू बिकम बिग, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट बिगनेस. इवन you have clarity that I want to remain small. सिर्फ छोटा रहना है, इसके लिए भी तो विजन चाहिए. सिर्फ विजन होने का मतलब ये नहीं कि आपको बड़ा बनना है. विजन का मतलब है कि छोटे रह के भी हम कैसे अच्छे रहें, ये भी तो विजन की बात है. तो चाहे आपको छोटा रहना है, चाहे आपको बड़ा बनना है, विजन इज अ मस्ट.